اتنے سارے مقدمات ہیں, 15 مقدمہ, اس میں نہ چوری ہے, نہ ڈکیتی ہے, نہ اس میں منی لانڈرنگ کا کیس آیا, نہ اس میں بیرون ملک جائیدادیں بنانے کا کیس آیا. اور عمران خان کا جرم یہ والے جو ایف آئی آر سیکشن پورا پی پی سی ان کے اوپر تھوپ دیا گیا ہے, اس سے کہیں زیادہ بڑے جرائم عمران خان نے کیے جو کہ ان ایف آئی آرز میں مینشن نہیں ہے. ان جرائم کی تفصیلات, چند تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, آئیے دیکھیں. سابق وزیر اعظم عمران خان پر اس وقت تقریباً 15 ایف آئی آر درج ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی روایات کے برعکس اس سابق وزیر اعظم کے اوپر کرپشن کا ابھی تک کوئی ایک کیس بھی نہیں, مگر شاید عمران خان کا جرم کرپشن سے کہیں زیادہ سنگین ہے اور اس جرم کی کوئی معافی نہیں. صرف ان کا مقصد ہے این آر او لینے کا. میں اگر ان کو این آر او دوں گا, میں اس قوم سے غداری کروں گا, میں اللہ سے بے وفائی کروں گا. ملزم عمران خان کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا جرم ہے ایک قداور شخصیت ہونا. جی ہاں, بونوں کی اس بستی میں بونے کردار کی اشرافیہ کے بیچ ایک قداور لیڈر ہونا عمران خان کا سب سے بڑا جرم ہے. میں کبھی کسی کی غلامی نہیں مانی, میں کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کے دلوں میں لا الہ الا اللہ اسی طرح آ جائے جو میرے دل میں. یہ کار سرکار میں مداخلت ہے. سامراج کے سامنے اونچے قد والا کیسے آ گیا؟ اشرافیہ کی اس بستی میں ایک مڈل کلاس شخص کیسے آ کر اس قوم کا لیڈر بن گیا؟ خاص طور پر ایک ایسا لیڈر جو ہمیشہ پاکستان کا نام روشن کرتا رہا, جبکہ دوسرے لیڈران کی کرپشن کی داستانیں بین الاقوامی میڈیا میں ہیڈ لائنز بنتی رہی. ایسے میں اس نے ورلڈ کپ جیت لیا تو کون سا تیر مارا؟ وہ اشرافیہ جو کھانسی اور زکام کے لیے باہر علاج کروانے کو ترجیح دیتی ہے, ایسے میں اس نے پاکستانیوں کے لیے کینسر ہسپتال بنائے. یہ 75 سال سے وہ سیدھا نظام کے کار سرکار میں مداخلت تھی اور اس کا جرم. اب یہ مڈل کلاس عمران خان اشرافیہ کے سامنے کھڑا ہوگا, ان کی بات کی نفی کرے گا, مقابلہ کرے گا, اور تو اور لوگوں کو بھی ورغلائے گا کہ ایک اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو. یہ کار سرکار میں مداخلت ہے, یہ عمران خان کا جرم ہے. یہ جو آج کل جنگ لڑی جا رہی ہے رول آف لا کی, قانون کی بالادستی کی جنگ ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم قانون کے اوپر ہیں. جرت کیسے ہوئی پاکستان کے قانون کی کہ ہمارے اوپر ہاتھ ڈالو؟ ہمیشہ ان لوگوں کے لیے ایک قانون اور عام بیچارے غریب آدمی کے لیے دوسرا قانون. عمران خان نے یہ جرم آج نہیں کیا, یہ جرم وہ 26 سال سے کرتا آ رہا ہے اور عوام کو انصاف کے لیے لڑنے کی تلقین کرتا ہے. عادی مجرم ہے. ہم نے اپنے حال کی بدلنے کی کوشش نہ کی تو یہ قوم بربادی کی طرف جا رہی ہے. آپ کے سامنے ہے بے روزگاری, مہنگائی. عمران خان کا یہ جرم بھی ناقابل معافی ہے کہ وزیر اعظم بن کر اشرافیہ کو فائدہ دینے کی بجائے لنگر خانے کھول دیے, وہاں غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کر دیا. ایسا کون کرتا ہے؟ بونوں کے نظام میں ایسا کون کرتا ہے؟ اشرافیہ کا پھولا ہوا پیٹ کون بھرے گا؟ اب وزیر اعظم غریبوں کو کھانا کھلائے گا؟ وہ اشرافیہ جو لوگوں کو لوٹ کر اپنے لیے بیرون ملک محل بناتی ہے, اس نے اپنے لیے باہر جائیدادیں کیوں نہیں بنائی؟ کیسا آدمی ہے؟ راتوں کو سڑکوں پر سونے والوں کے لیے پناہ گاہیں بنا دی. کیا اشرافیہ کے مہنگے سیکٹرز میں بھوکے ننگے غریب آ کر سویا کریں گے؟ سامراج کی توہین ہے یہ. مجرم عمران خان کو روکو, بند کرو یہ پناہ گاہیں,
पड़ा रहने दो इनको सड़कों पर। इलेक्शन के वक्त 5 किलो आटा उनके मुंह पर मारो, वोट लो और फिर एक लात मारो। इमरान खान अशराफिया का मुजरिम है कि गरीब और मिस्कीन पाकिस्तानियों को उनके बराबर लाने का कहता है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में किसी ने कभी सोचा कि गरीब आवाम को इतने महंगे इलाज के लिए और इतनी बड़ी सतह पर सेहत कार्ड दिया जाए ताकि वो अपनी मर्जी के किसी भी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवा सके? साम्राज्य ने यहाँ अपने लिए अलग अस्पताल बना रखे हैं। क्या अब गरीब आवाम भी उनके अस्पतालों में जाकर इलाज करवाएगी? ये गंदे मैले मेहनती पाकिस्तानी अशराफिया के अस्पतालों में इज्जत से इलाज करवाएंगे? ये हेल्थ कार्ड कार्य सरकार में मुदाखलत है। इमरान खान इस अशराफिया का मुजरिम है। एहसास ये किस बला का नाम है भाई? भला पाकिस्तान में भी कोई गरीब का एहसास करता है? और ये शख्स जिसका नाम इमरान खान है, ये गरीबों के लिए एहसास प्रोग्राम ले आया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अगर कह रही है कि गुर्बत खत्म करने के लिए ये दुनिया का बेहतरीन प्रोग्राम है, तो कहती रहे। हम पागल हैं क्या? क्या 75 सालों में किसी ने गरीब का एहसास किया? क्या इमरान खान गरीबों का मामा लगता है? ये सरासर कार्य सरकार में मुदाखलत है। FIR तो बनती है। जो सरकार बनाते हैं, गिराते हैं, उनके खिलाफ FIR? ये तो कार्य सरकार में मुदाखलत है। पाकिस्तान में आवाम की फलाह के बारे में सोचना और उस पे अमल करना जुर्म है। कार्य सरकार में मुदाखलत है। जब दुनिया भर में पेट्रोल सस्ता हुआ मगर पाकिस्तान में माफिया ने आवाम तक ना पहुंचने दिया, तो इमरान खान ने इसके ऊपर एक कमीशन बना दिया। अपने ही मावने खसूसी को निकाल दिया, जुर्माने कर दिए। पेट्रोलियम माफिया की तो दुनिया इज्जत करती है। इमरान खान का ये जुर्म है कि उसने सड़क पर पानी की बोतल पड़ी देखी तो उठा ली कि मेरा मुल्क गंदा ना करो, जबकि एक और साबिक वजीर आजम की गाड़ी के नीचे गरीबों के बच्चों को रोंदा जाता था। मिडिल क्लासिया इमरान खान अशराफिया में उठता बैठता, उनके तौर तरीकों से वाकिफ, साम्राज्य के हथकंडों को जानते हुए भी जब गरीब के हक पर डाका मारा गया तो चीनी इंक्वायरी कमीशन बना बैठा। अपनी सफों में बैठे चीनी माफिया के कारिंदों की ब्लैकमेलिंग में भी ना आया और कमीशन रिपोर्ट आने के बाद पाकिस्तान के सबसे ताकतवर माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। इमरान खान उनको जुर्माने करता फिर रहा है। इस माफिया की रसाई तो साम्राज्यी ताकतों तक है। ये तो साम्राज्यी कार्य सरकार में मुदाखलत है। इस जुर्म पे FIR तो बनती है। मसन चीनी और आटा ये जो महंगा हुआ है, मैं ये आज आपको कह रहा हूं कि इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जो भी इसमें मुलव्वस होगा, मेरा आपसे वादा है, इनको किसी को छोड़ेंगे नहीं हम। हाँ, इमरान खान एक मुजरिम है, अशराफिया का मुजरिम। उसने अमेरिका को फौजी अड्डे देने से इनकार किया, एब्सोल्युटली नॉट कहा। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. There's no way we're going to allow any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. अपने वक्त में जब तमाम मामलात सेट थे, इमरान खान ने मंसूबे पर पानी फेर दिया। अरे भाई, साम्राज्य कैसे चलेगा फिर? अशराफिया की उम्मीदें अमेरिका से जुड़ी हैं। क्यों ऐसा जुर्म किया? सरकार के फैसले में मुदाखलत क्यों की? इजराइल को तस्लीम करने का कहा गया था ना, तो क्यों ना किया? पाकिस्तान में साम्राज्य की बात ना मानना जुर्म है। इमरान खान
उसी साम्राज्य का मुजरिम है, उसी सरकार का मुजरिम है। जब हमारी पॉलिसी है कि हम इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, क्यों जाएगा वो वजीर ने जाके वहां क्या कर रहे? इमरान खान का संगीन तरीन जुर्म ये भी है कि उसने दूसरों की जंग में अपने लोग और फौजी शहीद करवाने से इनकार कर दिया। मैं उनको किसी की जंग में ले जाऊं और मेरे लोग शहीद हों, मेरी फौजी शहीद हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं कभी अपने लोगों को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। इससे पहले जितने भी हुक्मरान आए वो सब अमेरिका की एक फोन कॉल पर ढेर हो गए। परवेज मुशर्रफ जैसा ताकतवर डिक्टेटर भी अमरीकी हुक्म के आगे ना खड़ा हुआ। जनरल मुशर्रफ अपनी किताब में लिखता है कि अमेरिका ने कहा कि वी विल बॉम्ब यू इनटू स्टोन एज। एक धमकी, चारों शाने चित, 80,000 अपनी लोगों को मरवा दिया। इमरान खान क्यों ड्रोन हमलों और अपने लोगों के मरने की बात करता था? क्या पाकिस्तानियों के खून की बात भी कोई करने वाली बात है? क्या ड्रोन हमलों से अशराफिया मरी या मासूम पाकिस्तानी लोग भी? ये तो सीधा सीधा जुर्म है, कारे सरकार में मुदाखलत है। हमारे मुल्क में 2008 से लेकर 2018 तक 400 से ज्यादा ड्रोन अटैक्स किए उस मुल्क ने जिसके लिए हम जंग लड़ रहे थे। बिजली के हवाले से IPP's कमीशन बनाया, फिर उनकी ब्लैकमेलिंग के बावजूद उनको बिठाकर रकूम कम करवाना, ये भी इमरान खान का एक जुर्म है। कारे सरकार में मुदाखलत कोई मामूली जुर्म नहीं है। इमरान खान का ये जुर्म है कि 75 साल में वो पहला लीडर है जो आलमी सतह पर आंखों में आंखें डालकर बात करता है, सीना तान कर चलता है, गैर मुल्की आकाओं के सामने हाथ बांध कर खड़ा नहीं होता, उनकी जबान में जवाब देता है। La ilaha illallah, there is no God but one, and we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. इमरान खान का जुर्म ये भी है कि वो पाकिस्तानियों को एक आजाद कौम बनाना चाहता है, उनके हक के बारे में उनको बताता है, आवाज उठाने का कहता है, अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर ना झुकाने का दर्स देता है। हमारा मुल्क उस नारे पे बना था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, मेरा तेरा रिश्ता क्या, इस नारे के ऊपर हमारा मुल्क बना था। कौम को जगाता है, गुलामी नामंजूर के नारे लगाता है, कहता है कि इस मुल्क का फैसला इस मुल्क की आवाम करेंगे, कोई बैरूनी आका नहीं। बैरूनी आकाओं के गुलामों के खिलाफ आवाज उठाता है, कारे सरकार में खुल्लम खुल्ला मुदाखलत करता है। कभी हमने पाकिस्तान को कभी किसी की गुलामी नहीं करने देना, ना आज तक इमरान खान किसी के सामने झुका है। जब तक मेरे में खून है मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। हाँ, इमरान खान का ये जुर्म है कि बोनो की बस्ती में वो एक कदावर लीडर के तौर पर आकर खड़ा हो गया, जो कि सबसे अलग ही नजर आता है, जो एक डायरी उठाकर वजीर आजम हाउस से चला जाता है। हाँ, इमरान खान अशराफिया का मुजरिम है। मुजरिम है उस अशराफिया का जिन्होंने पाकिस्तान को दिहाइयों से गुलाम बना रखा है, जो चाहते हैं कि पाकिस्तानी भूख और नंग में ही रहे, जो चाहते हैं कि वो ना ही साफ पानी हासिल कर सकें और ना ही अच्छे अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकें, जो करप्शन को कबूल कर लें, जो चाहते हैं कि मिडिल क्लास मुल्क तो चलाए मगर हमारे गोल्फ क्लब का खर्चा तो बर्दाश्त करे, लेकिन मिडिल क्लास से कोई बंदा लीडर बनकर ना आए। इमरान खान मुजरिम है, लेकिन इस कौम का नहीं बल्कि उस बौनी अशराफिया और साम्राज्य का जो कि अवाम को गुलाम रखना चाहते हैं। इमरान खान का जुर्म कारे सरकार में मुदाखलत है, मगर इमरान खान आम पाकिस्तानी का हकीकी आजादी का लीडर है। जी नाज़रीन, ये एक फहरिस्त है, लेकिन ये मुकम्मल फहरिस्त नहीं है जराइम की। इस पे मजीद भी बात करेंगे क्योंकि इतनी जो FIRs हैं इनमें कौन कौन से जराइम
الزامات شامل ہیں.